Good morning, my dear students. Welcome back to your EVS online class of class 2. Students, as you know, your first chapter is over, completed. Okay? Book work completed. Now, today, we will study lesson 2. So first of all of you take out your books and get ready to study lesson 2. Now open lesson 2 given on page number 9. Lesson name is chapter 2, human body. Okay, your second chapter is human body. Human body means our body. Okay, हमारी जो body है, शरीर. Now first of all we will do reading of this chapter. We all have a beautiful body which has many parts. All of us have the same parts, but we are all different. Eyes, ears, nose, head, face, hands, legs, etc. are some of our body parts. Now I will explain you. We all have a beautiful body which has many parts. As we know, we are human beings. Okay, we are human beings and we have a beautiful body. Okay. All of us have the same parts, but we are all different and we all have the same parts, same body parts, eyes, ears, nose, legs, but we are different from each other. हमारे पास सेम बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, लेकिन हम तब भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं बिकॉज हमारी जो शेप्स हैं, साइज हैं, वो डिफरेंट हैं, लेकिन बॉडी पार्ट जो है वो हम पर सेम है. आइज, ईयर्स, नोज, हेड, फेस, हैंड्स, लेग्स, एटसेट्रा, दीज आर दी बॉडी पार्ट्स. ओके, यू नो ना बॉडी पार्ट्स, वेरी गुड, आर सम ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स एंड दीज आर दी बॉडी पार्ट्स. ओके, and you have studied about body parts from UKG class. आपने UKG क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा है बॉडी पार्ट्स. ओके, सो वी ऑल आर हैविंग सेम बॉडी पार्ट्स बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नाउ सी हियर एन एक्टिविटी इज गिवन हियर. कैन यू लेबल द बॉडी पार्ट्स? ओके, हियर you will, what you will do, you will label the body parts. आप यहाँ पर body parts को नेम लिखेंगे. Okay, like this. What is this? Head. And this hair. Okay, this cheeks, lips. Understood? Chest, arm. Okay, students, like this you will write the body parts name. Okay, and here you can see here space for your self portrait. Self portrait means आपको अपने हाथ से ही ड्रॉ करना है. ओके, अपनी पिक को ड्रॉ करनी है, अपने फेस की पिक आप ड्रॉ कर सकते हैं इस स्पेस में. अंडरस्टूड? एंड स्टूडेंट्स, here I will tell you that the parts that we can see with our eyes are called external parts. Okay, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे external body parts होते हैं. Understood? So now come to page number 10. Next page. Our body has two types of organs, body parts, external organs and internal organs. Okay, so our body has two types of organs, means two types of body parts, external and internal. Okay, now we will read here what are the external organs, external body parts.
Organ means body parts. Externally, our body has three main parts, namely the head, the trunk and the limbs. Externally, we are having three body parts. ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नली बाहरी जो बॉडी पार्ट्स हैं, दैट आर हेड, ट्रंक एंड लिम्स. हेड सर हो गया हमारा, ट्रंक में कहता है द चेस्ट, द बैक एंड द एब्डोमन. ओके, जो बीच का हमारा जिसे बोलते हैं धड़. अंडरस्टूड? जिसमें हमारी चेस्ट आएगी, बैक आएगी और एब्डोमन नीचे का पार्ट आएगा. अंडरस्टूड? दैट इज अवर ट्रंक. एंड द लिम्स. लिम्स क्या होते हैं? आर्म्स एंड लेग्स. ओके, हाथ पैर. So these are the external organs. Now first external organ is the head. The hair is on the head. बाल कहाँ होते हैं? हमारे सिर पर होते हैं. The face consists of 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 2 cheeks, 1 mouth, 2 lips, 1 chin. The face or head is on the neck. ओके, और फेस में हमारे क्या क्या आता है? फेस किस चीज से बना हमारा चेहरा? उसमें 2 आईज, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 नोज होती है, नाक होती है, 2 चीक्स, 2 गाल होते हैं, 1 माउथ, 1 मुंह होता है, 2 लिप्स, 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप, 1 चिन, 1 चिन होती है. अंडरस्टूड? द फेस और हेड इज ऑन द नेक. और जो हमारा फेस और हेड जो है वो हमारा नेक के ऊपर होता है, मीन्स हमारी गर्दन से ऊपर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर हेड. नेक्स्ट इज द ट्रंक. द ट्रंक. द ट्रंक हैज 3 मेन पार्ट्स, द चेस्ट, द बैक एंड द एब्डोमेन. ट्रंक के कितने मेन पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं. पहला होता है चेस्ट, बैक एंड एब्डोमेन. ओके, द लिम्स. लिम्स में क्या आता है? आर्म्स एंड लेग्स, आपके हाथ पैर. अंडरस्टूड? टांगें और बाहें. द लिम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अपर लिम्स और आर्म्स. अपर लिम्स में क्या आता है? अपर लिम्स कहते हैं या आर्म्स कहते हैं उन्हें, बाहें जो होती है हमारी. ठीक है. एंड लोअर लिम्स. लोअर लिम्स में किसे कहते हैं? लेग्स, जो हमारी टांगे होती हैं. देयर आर 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स. हमारे पास 2 बाहें होती हैं और 2 टांगे होती हैं. आर्म्स आर अटैच्ड टू द शोल्डर एंड our arms are attached to the shoulder. Okay, here this is our arm and this attached to the shoulder. ये हमारे कंधे से जुड़ी होती है. Okay, and this is the leg. ये टांग होती है. Okay, each arm has upper arm, elbow, forearm, wrist, palm and fingers. And in our arm there's upper arm, जो ऊपर की बाहें होती हैं, that is upper arm. फिर आती है आपकी एल्बो, कोहनी, और नीचे का जो होता है वो पार्ट होता है फोर आर्म. रिस्ट आपकी कलाई, पाम हथेली, फिंगर्स उंगलियां, थम अंगूठा. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अवर आर्म. Now next is legs. Legs are attached to the hips. जो हमारी legs होते हैं वो हमारे hip से attach होते हैं. ओके, नीचे वाले पार्ट से attach होते हैं टांगे हमारी. Each leg has thigh, knee, shin, calf, ankle and foot. ओके, और legs में क्या क्या होता है? You can see here thigh, knee, घुटना, shin, that this part is called shin, calf, ankle, foot and toes. जो पैरों की उंगलियां होती हैं उन्हें toes बोलते हैं.
नॉट फिंगर्स, ओके। जो हमारे हैंड की फिंगर्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, उन्हें हम फिंगर्स बोलते हैं। और लेग्स की, जो हमारे पैर की जो होती हैं, फुट की जो उंगली होती हैं, वो हमारी टोज होती हैं। अंडरस्टूड? So these are the parts of the leg. Now come to next page, page number 11. Functions of external body parts. Now we will study here about external body parts, means the function of, okay, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो, ठीक है। ईच बॉडी पार्ट हैज़ अ यूनिक फंक्शन। हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक अलग फंक्शन होता है, ओके। मीन्स जो काम हमारी आईज करेंगी वो हम अपनी नोज के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। आईज से हम देखते हैं एंड नोज से हम स्मेल करते हैं। सो each body part has its own unique function. Our hands, first is our hands help us to hold, throw, lift, catch, push, pull, eat, point, greet, clap, write, etc. हैंड हमें किस में हेल्प करता है? होल्ड, पकड़ने में, फेंकने में, लिफ्ट करने में, वजन उठाने में, पकड़ने में, कैचिंग करने में, पुश करने में, धक्का कर देने में, पुल करने में, ठीक है, खाने में, क्लैपिंग करने में, ग्रीट करने में, वेलकम करने में, लिखने में। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ अवर हैंड्स, दीज आर द वर्क ऑफ अवर हैंड। ये काम कौन करता है? हमारा हाथ करता है, ओके। हाथ से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, खाते हैं। यू नो ना द वर्क ऑफ योर हैंड। आप पूरे दिन में कितना वर्क करते हैं अपने हाथ से? सो दैट यू विल डू विद योर हैंड्स। जो काम आप अपने हाथ से कर रहे हैं वो सिर्फ आप हाथ से ही करेंगे, वो हम पैर से नहीं करते हैं। नेक्स्ट, आवर फिंगर्स ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग थिंग्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स क्या करती हैं? चीज़ों को होल्ड करती हैं। दे हेल्प टू राइट, पेंट एटसेट्रा, ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज फिंगर्स, ओके। These are the our fingers, and with these fingers we can hold, write and paint, okay. We can do drawing also, ठीक है। Our legs help us to walk, run, jump, hop, skate, kick, skip, dance, etc. And with the help of our legs, हम अपने legs की हेल्प से क्या करते हैं? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ओके। हम भाग सकते हैं, कूद सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, ओके। एंड डांस कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। सो वी कैन डू दिस फंक्शन विद आवर लेग्स। नेक्स्ट, आवर एल्बो, रिस्ट एंड नी आर जॉइंट्स। ये हमारे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मीन्स जो दो बॉडी पार्ट्स जहाँ से वो अटैच है, सो दे आर कॉल्ड जॉइंट्स, ओके। मीन्स आपकी आर्म जो है वो आपके शोल्डर से अटैच है और वहाँ से हमारी जो वो आर्म होती है वो मूव हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारा जॉइंट हो गया, ठीक है। और हमारी आर्म में एल्बो होती है, कोहनी, ठीक है। कोहनी से हम अपनी आर्म को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो वो हमारा जॉइंट हो गया, ठीक है। दो बॉडी पार्ट्स को जहाँ से जॉइन किया गया है, जहाँ से वो जॉइन है एक दूसरे से, दैट इज द जॉइंट, ओके। दे हेल्प इन मूवमेंट। और जॉइंट्स क्या करते हैं? मूवमेंट मीन्स हम अपने बॉडी पार्ट्स को वहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आवर फीट हेल्प अस टू स्टैंड एंड आवर फीट, जो हमारे पैर होते हैं उनसे हम वो क्या हेल्प करते हैं? हमें खड़ा होने में, ओके। उनकी हेल्प से हम खड़े हो सकते हैं, ओके। सो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स
and function of external organs. Okay, today what we studied? We studied about external organs and their function. Okay students, have you understood? Very good. So in next video I will teach you the next topic, second type of organs. Okay, second type of body parts, that are internal organs. Okay, internal organs. This topic we will study later in next video. So till then you will do reading of these external organs and function of external body parts. Okay students, read this lesson and I have given you a homework. This homework you will do yourself and please write in neat and clean writing as I will show you here. Like this students you have to write. Okay, you have to write in the given space, given column. अंडरस्टूड? जो आपको ये स्पेस प्रोवाइड कर रखा है आपको इसी में ही लिखना है और बिल्कुल सुंदर साफ राइटिंग में. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? वेरी गुड. So this is only for today.